Hello students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Computer Network. Learning outcomes. At the end of this chapter, you will be able to know about computer network, learn different types of network and identify the advantages of a computer network. Warm up. Circle the devices which are connected to Wi-Fi in your house. तो आपको बेहतर तरीके से पता होगा कि कौन से ऐसे डिवाइसेस है जो आपके घर में वाईफाई से कनेक्टेड है. ओके. Hey friends, let us learn about computer networks. इस चैप्टर में हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में जानेंगे, right? So let's get started. We frequently discuss our feelings, opinions and favorite things with our friends. Similarly, two or more computers must be connected in order to share information. A computer network is made up of two or more computers that are connected to one another through various communication channels. These computers are all linked together in such a way that they can occasionally exchange data and hardware resources. देखिए हम अपने फ्रेंड्स के साथ हम क्या करते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपनी ओपिनियंस को या कोई भी फेवरेट चीज़ को हम डिस्कस करते हैं. तो इसी तरह से जब दो और आपके और ज़्यादा कंप्यूटर्स का साथ में कनेक्ट होना ज़रूरी है अगर इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाना है तो, राइट. तो आपके जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स से बना होता है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं अलग अलग कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू. ओके. तो ये कंप्यूटर्स इस तरह से लिंक्ड होते हैं साथ में कि ओकेजनली डेटा एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज को एक्सचेंज करते हैं. ओके. द नीड फॉर अ कंप्यूटर नेटवर्क. अब कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत क्यों है? An organization can benefit greatly from a computer network in a number of ways. Here are some advantages of a computer network. Number one, saves cost. We have learned how all the computers are connected to a single network and can share a variety of hardware resources. There is no requirement to purchase several items as a result of this. For instance, a single modem can be used to link a variety of networked devices to the internet. अच्छा देखिए, एक तो अगर आपके कंप्यूटर एक सिंगल नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है तो बहुत सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज को शेयर करते हैं. ओके. तो इससे क्या होता है कि कॉस्ट की सेविंग हो जाती है, मतलब कि सारे जो आइटम्स हैं उनको खरीदने की ज़रूरत नहीं होती, राइट. रिड्यूसिंग डेटा रिडंडेंसी. Imagine that an organization has 100 employees and every single one of them wants to work on the same file. One approach is to keep separate copies of the same file on each computer. Data duplication of redundancy will result from this. The alternative is to connect all of the computers over a network and store a single copy of the file on a main computer, allowing the other networked computers to access the file as needed. अच्छा देखिए, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 100 एम्प्लॉयज़ हैं और हर सिंगल पर्सन को सेम फाइल पे काम करना है. ओके. तो एक अप्रोच तो है कि सेपरेट कॉपीज़ रखी जाए सेम फाइल की हर कंप्यूटर में. ओके. बट इससे फिर क्या होगा? डेटा का डुप्लीकेशन होगा, राइट. तो अल्टरनेटिव क्या है कि कनेक्ट कर दिया जाए सारे कंप्यूटर्स को नेटवर्क ओवर अ नेटवर्क एंड देन फिर एक सिंगल कॉपी जो है फाइल की बल्कि मेन कंप्यूटर पे स्टोर कर दी जाए और उसके बाद जो चाहे उसे एक्सेस कर सकता है जब ज़रूरत पड़े. ओके. शेयरिंग रिसोर्सेज. इंफॉर्मेशन और डेटा, software applications and hardware components make up resources. These resources can be shared across computers that are connected through a network. अच्छा देखिए, जैसे कि डेटा है, इंफॉर्मेशन है या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है या हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, ये सारे आपके क्या बनाते हैं? रिसोर्सेज बनाते हैं. तो इन रिसोर्सेज को शेयर किया जा सकता है क्रॉस कंप्यूटर जो नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं. For instance, a single computer with a printer attached, many exist in an organization. All the other computers that are part of the network can use the network services of the same printer. जैसे देखा होगा कि आपने एक सिंगल कंप्यूटर के साथ एक आपका प्रिंटर अटैच होता है, वो आपके एक मतलब सारे ऑर्गेनाइजेशन उसका यूज़ करेंगे. बाकी जो जितने भी कंप्यूटर्स हैं जो उस नेटवर्क के पार्ट हैं वो उस नेटवर्क सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं ऑफ द सेम प्रिंटर, राइट. Next, security. As more computers communicate information via a network, security becomes increasingly important. This can be done using a variety of methods, including setting up a firewall system and other network protection tools that are available across many platforms. This aids in the fight against phishing and data theft. अच्छा अब देखिए, क्योंकि ज़्यादा कंप्यूटर्स आपके जो है इंफॉर्मेशन को आपके कम्युनिकेट करने एक नेटवर्क के वाया, तो इससे क्या होता है कि अब सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है. ओके. तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? वेराइटी ऑफ मेथड से कर सकते हैं. सबसे पहले तो फायरवॉल सिस्टम को हम उसका सेटअप कर सकते हैं. ओके. दूसरा
आपके बहुत सारे प्रोटेक्शन टूल्स होते हैं जो आपके बहुत सारे प्लेटफॉर्म से अवेलेबल होते हैं. ओके, तो इससे क्या होता है कि फिशिंग एंड डेटा थेफ्ट का खतरा नहीं रहेगा. ओके, तो ये तो बात थी एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क्स. अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स की. Computer networks can be characterized by their size as well as their purpose. There are different types of computer networks depending upon the number of devices that are connected together. The size of a network can be expressed by the geographic area that occupy and the number of computers that are part of the network. Okay. तो कंप्यूटर नेटवर्क को हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं उनके साइज और उनके पर्पस के बेसिस पे. ओके, तो बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आपके कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ डिवाइसेस जो उसके साथ कनेक्टेड है. ओके, एंड जो साइज है नेटवर्क का वो हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं कि बाय द जियोग्राफिक एरिया. ओके, जो ऑक्यूपाई करते हैं, नंबर ऑफ कंप्यूटर जो उस नेटवर्क के पार्ट है. राइट, फर्स्ट वन इज पर्सनल एरिया नेटवर्क और पैन. अ कंप्यूटर नेटवर्क सेटअप जस्ट फॉर एन इंडिविजुअल इनसाइड अ compact building is known as personal area network. This may take place in a small workplace or house. PAN generally covers a range of up to around 10 meters. A PAN would typically consist of one or more computers, phones including mobile phones, printers, video game consoles and other personal entertainment devices. अच्छा देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क जो सिर्फ आपके इंडिविजुअल के लिए है सेटअप हो, मतलब कि एक कॉम्पैक्ट बिल्डिंग के अंदर, तो उसे हम कहते हैं पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क. तो इसमें आपके जैसे ये जनरली जो है 10 मीटर का जो रेंज है उसको कवर करता है. ये आपके इसमें एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, प्रिंटर्स होते हैं, वीडियो गेम्स होते हैं और दूसरे एंटरटेनमेंट डिवाइसेस होते हैं. राइट, डू यू नो द मेन रोल ऑफ पैन इज टू एलिमिनेट केबल्स दैट कनेक्ट डिवाइसेस टू पेरिफेरल्स. अच्छा देखिए, मेन रोल जो पेन का है वो क्या है कि केबल्स को एलिमिनेट करना जो डिवाइसेस को पेरिफेरल्स के साथ कनेक्ट करते हैं. राइट, नेक्स्ट इज लोकल एरिया नेटवर्क. The local area network is confined to a limited area, such as a room, an office building, or a school, or a college campus. As the area covered by LAN is limited, the data transmission speed in LAN is very fast and can easily maintained. In LAN, wires are used to physically connect the computer terminals. WLAN refers to local area networks where computers communicate wirelessly. अच्छा देखिए, लोकल एरिया, अब लोकल एरिया नेटवर्क आपका कहाँ तक कन्फाइंड होता है? एक लिमिटेड एरिया तक, जैसे कि रूम है, ऑफिस है, बिल्डिंग है या स्कूल या कॉलेज कैंपस है. ओके, अब क्योंकि हम लैन में जो एरिया कवर्ड है वो लिमिटेड है, तो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड काफ़ी फास्ट हो जाती है. ओके, और उसको इजीली मेंटेन भी किया जा सकता है. लैन में वायर्स को यूज़ किया जाता है कंप्यूटर्स को फिजिकली कनेक्ट करने के लिए. ओके, जबकि जो WLAN है वो लोकल एरिया नेटवर्क है जहाँ पे कंप्यूटर्स कम्युनिकेट करते हैं वायरलेसली. ओके, नेक्स्ट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और मैन. A metropolitan area network consists of a computer network which covers an entire city, college campus or small region. As compared to LAN, it covers a wider area. A MAN network's computers can be linked together using both wired and wireless communication methods. ATM machines of a specific bank installed at different locations in a city are an example of MAN. अब देखिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है ये इंटायर सिटी को कवर करता है. ओके, या आपका कॉलेज कैंपस है, छोटा सा कोई रीजन है, तो लैन के कंपैरेटिवली ये आपका वाइडर एरिया कवर करता है. इसमें आपके जो कंप्यूटर्स हैं वो वायर के साथ भी कनेक्टेड होते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन भी होता है उनके बीच में. ओके, जैसे ATM मशीन्स होते हैं किसी स्पेसिफिक बैंक के जो आपके इंस्टॉल्ड होते हैं सिटी के डिफरेंट लोकेशंस में. ओके, तो ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं मैन के. नेक्स्ट इज वाइड एरिया नेटवर्क. A wide area network occupies a very large area, such as an entire country or the entire world. It consists of many smaller networks such as LANs or MENs. The primary characteristic of WAN is that data transfer requires a public telecommunications medium. A very common example of WAN is the internet, wherein millions of computers are interconnected with each other. ओके, अब वाइड एरिया नेटवर्क जो है बहुत ही बड़ा जो एरिया है उसको ऑक्यूपाई करता है, जैसे कि पूरी की पूरी कंट्री या पूरा का पूरा वर्ल्ड. ओके, तो इसमें आपके बहुत छोटे छोटे नेटवर्क्स होते हैं जैसे कि लैन्स हो गए, मैन्स हो गए. तो जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक होता है वैन का वो है कि डेटा ट्रांसफ़र को एक पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन मीडियम की ज़रूरत पड़ती है. ओके, जैसे इंटरनेट, ये भी आपका वैन का ही एग्जाम्पल है जहाँ पे आपके मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ. राइट, नेटवर्क टोपोलॉजीज. The
organization of diverse network components in a way that makes communication simple is known as network topology. Before you start with the arrangement of network components, it is crucial to establish the logical topology, also known as the information flow between network components. Network topologies are categorized into the following basic types. So देखिए network topology को देखते हैं जिसको बहुत सारे ways में इनको categorize किया गया है, ओके और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम लॉजिकल टोपोलॉजी को एस्टैब्लिश करें जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन फ्लो बिटवीन नेटवर्क कंपोनेंट्स, राइट. See, first topology is point to point. This topology is among the most widely used since it is simple to utilize. Direct communication between two network components such as PCs, routers, hubs, etc. is established using this method. Both wired and wireless technologies can be used to create a direct link. सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली आपकी टोपोलॉजी है क्योंकि इसको यूटिलाइज करना बहुत सिंपल है, ओके तो इसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है दो नेटवर्क कंपोनेंट्स के बीच में, जैसे कि आपका पीसीज है, राउटर्स है, हब्स है, राइट. तो इसको जैसे इसमें आपकी वायर्ड एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी दोनों को ही यूज़ किया जाता है एक डायरेक्ट लिंक को क्रिएट करने के लिए, ओके. नेक्स्ट इज बस टोपोलॉजी. Bus topology, also known as line topology, is a type of network topology in which all devices in the network are connected by one central network cable or coaxial cable. The single cable where all data is transmitted between devices is referred to as a bus, backbone or trunk. There are two types of bus topologies. Number one, linear bus topology. All devices are connected to a single cable with two endpoints. Number two, distributed bus topology. All devices are connected to a single cable that branches off into multiple sections resulting in more than two endpoints. अब देखिए बस टोपोलॉजी को लाइन टोपोलॉजी भी कहा जाता है, ओके. इसमें क्या होता है, डिवाइसेस आपके कनेक्टेड नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं आपके एक सेंट्रल नेटवर्क केबल या कोएक्सियल केबल से. अब देखिए इसमें आपका दो टाइप ऑफ बस टोपोलॉजी है. एक तो है लीनियर बस टोपोलॉजी जो एक सिंगल केबल के साथ और जिसमें दो एंड पॉइंट्स होते हैं आपके कनेक्टेड होता है. जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड बस टोपोलॉजी इसमें क्या होता है कि सारे डिवाइसेज जो है सिंगल केबल के साथ कनेक्टेड तो होते हैं जो आपके मल्टीपल सेक्शंस में ब्रांच ऑफ होती है, तो जिसकी वजह से दो से ज़्यादा एंड पॉइंट्स हो जाते हैं, राइट. रिमेंबर इट, अ होस्ट ऑन अ बस नेटवर्क इज कॉल्ड अ स्टेशन. होस्ट बस नेटवर्क पे जो होता है उसे स्टेशन कहा जाता है, okay. Next is star topology. In a star topology, the central hub acts like a server and the connecting nodes acts like clients. When the central node receives data from a connecting node, it can pass the data on to other nodes in the network. A star topology is also known as a star network. अब star topology में क्या होता है कि जो central hub होता है वो server की तरह काम करता है. As you can see in the pictures, this is the star topology. एंड जो आपके कनेक्टिंग नोड्स होते हैं ये क्लाइंट्स की तरह एक्ट करते हैं, ओके. तो जब सेंट्रल नोड डेटा को रिसीव करता है कनेक्टिंग नोड से तो फिर ये डेटा को पास करता है दूसरे नोड्स को, ओके. और इसे स्टार नेटवर्क भी कहा जाता है. In this topology, it is easy to add a new device to the network with the help of any one cable. The entire network goes down only if the central computer hub fails. इसमें क्या होता है, किसी भी नए डिवाइस को ऐड करना बहुत आसान होता है, ओके. बट इसकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि अगर सेंट्रल कंप्यूटर या हब फेल हो जाता है तो एंटायर नेटवर्क गोज डाउन, राइट. रिंग टोपोलॉजी. Each computer in a ring topology is connected to the one behind it in such a way that when they are all put together, they resemble a shape of ring. When one node sends a message to the other node, which is not adjacent to it, the data travels through all the intermediate nodes until it reaches its final destination. The data in this topology has to pass through each connected computer. This makes it slower than the other topologies. अच्छा देखिए, हर कंप्यूटर जो है रिंग टोपोलॉजी का कनेक्टेड होता है टू द वन बिहाइंड इट, इस तरह से कि जब इनको साथ में रखा जाता है ना तो ये एक रिंग की शेप की तरह रिजेंबल करते हैं, ओके. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ओके. तो जब एक नोड मैसेज सेंड करता है दूसरे नोड को जो उसके एडजेसेंट नहीं है तो फिर क्या होगा, डेटा जो है जितने भी इंटरमीडिएट आपके नोड्स हैं उनके थ्रू आपका ट्रैवल करेगा जब तक कि अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता. तो डेटा जो है इस टोपोलॉजी में उसको फिर हर कनेक्टेड कंप्यूटर के साथ पास होना पड़ता है जब तक कि अपने डेस्टिनेशन तक ना पहुंचे. तो इससे क्या होता है कि ये टोपोलॉजी थोड़ी सी आपकी स्लोअर हो जाती है कंपैरेटिवली अदर टोपोलॉजीज, राइट. नेक्स्ट इज ट्री टोपोलॉजी. A tree topology is a sort of structure in which each node is related to others in a hierarchy. In a topological hierarchy, there are at least three distinct levels. Sometimes it is also called hierarchical topology. As in this topology, all elements are arranged like the branches of a tree. In a tree topology, there can be one connection between any two connected computers.
for database related services or to organize the computers in a large cooperative network. The tree topology is commonly utilized. In this topology, the expansion of network is visible and an easy task to carry out, but the maintenance of the same is often difficult. अब देखिए ट्री टोपोलॉजी में देखिए एक ट्री की तरह दिख रहा है जिसमें इसके ब्रांचेस, आप ट्री की ब्रांचेस होती हैं, राइट, है ना। तो इसमें क्या होता है कि कम से कम आपके 3 डिस्टिंक्ट लेवल्स होने चाहिए। कई बार इसको हायरार्किकल टोपोलॉजी भी कहा जाता है, ओके, क्योंकि जो एलिमेंट्स होते हैं उसके वो आपके जैसे ट्री की ब्रांचेस होते हैं तो इस तरह से होते हैं। इसमें आपका क्या होता है, ओन वन कनेक्शन होता है बिटवीन एनी 2 कनेक्टेड कंप्यूटर्स, ओके। जैसे डेटा रिलेटेड सर्विसेज हैं या कंप्यूटर्स को लार्ज कोऑपरेटिव नेटवर्क में आपको ऑर्गेनाइज करना है, तो ये ट्री टोपोलॉजी को कॉमनली यूज़ किया जाता है। तो इस टोपोलॉजी में जो एक्सपेंशन है नेटवर्क का दैट इज फीसिबल, और इसको मतलब ईजी टास्क, और इसको कैरी आउट करना इट्स लाइक एन ईजी टास्क, लेकिन इसका जो मेंटेनेंस है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ओके। नेक्स्ट इज मैश टोपोलॉजी. Computers are joined randomly in a mesh network structure. Each computer in the network can transmit a signal to other computers in this sort of topology, and each computer also assists in retransmitting data to other computers in the network. It is a topology commonly used for wireless networks. The cost is too high for maintaining this type of network. अब मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, इसमें कंप्यूटर जो है आपके जॉइंट होते हैं रैंडमली एक मैश नेटवर्क स्ट्रक्चर में, ओके। तो हर कंप्यूटर इस नेटवर्क का क्या करता है, सिग्नल को ट्रांसमिट करता है अदर कंप्यूटर्स में, एंड हर कंप्यूटर जो है वो असिस्ट करते हैं उस डेटा को रीट्रांसमिट करने में टू अदर कंप्यूटर्स। तो ये इसमें ये जो टोपोलॉजी है इसमें वायरलेस नेटवर्क्स का यूज़ किया जाता है, बट इस टोपोलॉजी को जो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट है वो आपका काफ़ी हाई है, ओके। Next is peer-to-peer network. In the simplest terms, a peer-to-peer network is a network created whenever 2 or more devices, usually a computer, are connected and share resources available on the web. Each computer can act both as a server and a client, as there is no central server in this network. सिंपलेस्ट टर्म में अगर हम पीयर टू पीयर नेटवर्क की बात करें तो ये नेटवर्क आपका क्रिएट होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस, ऑफ कोर्स आपके यूजुअली कंप्यूटर होते हैं, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं एंड शेयर रिसोर्सेज अवेलेबल होता है वेब पे। हर कंप्यूटर जो है वो सर्वर की तरह भी एक्ट करते हैं और क्लाइंट की तरह भी एक्ट करता है, क्योंकि इसमें कोई भी सेंट्रल सर्वर नहीं होता है, राइट। Next is client-server network. Several computers called clients are connected to the main computer called the server in this network. A computer that serves clients and manages access to hardware, software, and other resources is known as a server. The computers that ask the server for services like data retrieval, storage, etc. are known as clients. अब देखिए, सर्वर बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं आपके जिनको क्लाइंट्स कहा जाता है, वो आपके मेन कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होते हैं, जिसे कहते हैं सर्वर, ओके। कंप्यूटर जो क्लाइंट्स सर्व करता है एंड एक्सेस मैनेज करता है, एक्सेस मतलब ये मैनेज किसके लिए करता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, दूसरे रिसोर्सेज हैं, उन्हें कहते हैं सर्वर। तो कंप्यूटर जो सर्वर को सर्विसेज के लिए पूछता है लाइक डेटा रिट्रीवल या स्टोरेज के लिए, उसे हम कहते हैं क्लाइंट्स, ओके। लेट्स रिकॉल. An organization can benefit greatly from a computer network in a number of ways. Computer networks can be characterized by their size as well as its purpose. A computer network set up just for an individual inside a compact building is known as a personal area network. A wide area network occupies a very large area, such as an entire country or the entire world. A tree topology is a sort of a structure in which each node is related to others in a hierarchy. In client-server network, several computers called clients are connected to main computer called the server. Students, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.